So now this is the next video about group 16. So here we are starting group 16. Group 16 is oxygen family, and the group 16 are also called chalcogens. Because they are ore forming family, मतलब बेसिकली जितने भी ओर्स हम देखते हैं वो या तो ऑक्साइड्स होते हैं या सल्फाइड होते हैं मेनली. सो दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो कॉल्ड ore forming elements. The members of this group are oxygen, sulfur, selenium, tellurium, polonium, which is radioactive. Polonium is radioactive. The general configuration of this group is NH2 NP4. outermost shell में NH2 NP4, और हम NP4 को expand करते हैं तो NPX2, NPY1 and NPZ1. The ionization enthalpy, अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करेंगे ग्रुप 15 के साथ में, सो वी विल फाइंड दैट द फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज अनएक्सपेक्टेडली हायर देन द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16. And you very well know the reason, because group 15 has P3 configuration, and P3 is the exactly half-filled configuration which is stable. So because of that stable configuration, ग्रुप 15 पहला एलिमेंट ग्रुप 15 पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में बहुत हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट रखता है. नेक्स्ट इज कैटिनेशन. मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स in this group they show little tendency, although sulfur after carbon अगर हम किसी को काउंट करते हैं to show the maximum catenation ability is sulfur, because sulfur can make S8 molecule. Oxygen also extend to a little extent can show the कैटिनेशन. जैसे ओजोन में O3 मॉलिक्यूल बनता है, तो 3 ऑक्सीजन एटम्स आर जॉइनिंग. मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, सबसे ज़्यादा अगर मल्टीपल बॉन्ड की कैपेबिलिटी है तो दैट इज़ फाउंड इन केस ऑफ ऑक्सीजन. द अदर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप हैज़ दिस टेंडेंसी विच डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. ठीक है, तो कैटिनेशन मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन मैक्सिमम इज फॉर ऑक्सीजन एंड देन इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. The oxidation state, this family has oxidation state of -2. Basically -2 होती है. Oxygen can show -1 also in the case of peroxide, and when it is O2 means in the elemental form इसकी oxidation state 0 है. And it can also make a +2 state. ये देखेंगे +2 की state हम ये सिर्फ तब बनाता है जब ये फ्लोरीन के साथ अटैच्ड होता है. ये देखिए OF2, because oxygen fluorine is the only element which is more electronegative than oxygen in the whole periodic table. So oxygen can make only +2 in the presence of fluorine, right? Only fluorine is the element which can take the electron from oxygen. Otherwise, from rest of the element, oxygen is more electronegative. Next, the tendency to show -2 oxidation state decreases down the group. As you know, the मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, सो दैट इज़ वाई -2 की तो टेंडेंसी कम होती है. इसके अलावा इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं ये +2, +4 एंड +6 की ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं, बिकॉज ऑफ द एबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ MTD ऑर्बिटल. तो जैसे हम नीचे के जाएंगे एलिमेंट्स को देखेंगे तो वो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +4, +6 भी है, बिकॉज दे हैव द MTD ऑर्बिटल. Next, electron gain enthalpy. Because of the small size of the atom of oxygen has a less negative electron gain enthalpy than sulfur onwards. It becomes positive, and positive value again becomes less negative up to polonium. तो अगर इसमें एक कोई नॉर्मल ट्रेंड नहीं देखने को मिल रहा है, ऑक्सीजन की वैल्यू कम नेगेटिव है, सल्फर से ऑनवर्ड्स जो है ये पॉजिटिव होना शुरू हो जाती है, एंड लेस नेगेटिव वैल्यू होनी शुरू हो जाती है. बेसिकली इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो टेंडेंसी होती है डाउन द ग्रुप कम होती जाती है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन साइज. देन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, it increases regularly from oxygen to tellurium due to the increase in the size of the atom, hence the van der Waals forces also increases. The last element polonium has low melting and boiling point, and the tellurium, then tellurium होना चाहिए यहाँ पे, then tellurium due to the maximum inert pair effect.
क्योंकि हम पोलोनियम में जब पहुंचते हैं तो पोलोनियम आते आते तक वी हैव द d orbital also filled inside and f orbital also filled. So as you know d and f orbital has poor shielding, तो उसकी वजह से इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ जाता है. सो इसकी वैल्यू पे इफेक्ट डाल रही है. राइट. So these are the physical properties of oxygen family where we have discussed about configuration, ionization enthalpy, catenation, multiple bond formation, oxidation state, electron gain enthalpy, melting and boiling point. Now the next is केमिकल प्रॉपर्टी. ये किस तरह की केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो हम सबसे पहले देखेंगे हाइड्राइड्स. हाइड्राइड्स में एज यू नो दे आर द मॉलिक्यूल इन विच द एलिमेंट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन. इनके जो हाइड्राइड की जनरल फार्मूला है वो H2A बनता है, जैसे H2O, H2S, H2SE, H2TE. ठीक है. वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सेलेनियम एंड देन सिमिलरली हाइड्रोजन टेलोराइड एंड इस तरह से ये सारे इसके कंपाउंड्स बनते हैं. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं. द फर्स्ट वन इज़ वाटर इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वाइल H2S इज़ अ गैस. तो वो वाटर लिक्विड क्यों है? क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है. अदरवाइज जो बाकी के इसके नीचे के मेंबर हैं जैसे कि H2S, H2SE, H2TE, इनमें जो आपका एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके. दैट इज़ वाई दे आर गैसेस. नेक्स्ट, इसी में आप सेकेंड पॉइंट देखो. These hydrides are acidic in nature and the acidic nature increases down the group. Acidic nature increase होता है. अब acidic nature का मतलब है एसिड्स वो होते हैं जो प्रोटॉन लूज़ करते हैं, और एज यू नो कि नीचे हम जैसे जाएंगे तो जो एलिमेंट है और हाइड्रोजन है इनके साइज एटॉमिक साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा. तो हाइड्रोजन को बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो वीक हो जाएगी. सो H+ कैन बी इजीली रिलीज्ड. एंड ये लिखा भी हुआ है, दिस इज़ ड्यू टू द डिक्रीज इन स्टेबिलिटी ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज डिफरेंस. ये मैंने आपको नाइट्रोजन फैमिली में भी समझाई थी बात. दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड द रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. तो यहाँ पर हमने 3 चीज़ों पे बात करी है. अगर आपको ऑर्डर को डिस्क्राइब करने के लिए आएगा तो पहली चीज़ है हाइड्राइड्स का एसिडिक नेचर विच इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. दूसरा है इसकी स्टेबिलिटी विच डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. और तीसरा पॉइंट है इसका रिड्यूसिंग नेचर विच इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप. तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था पहले भी कि ऑर्डर ज़रूर आ सकता है, तो ये पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है. आप 3 ऑर्डर यहाँ से बनाते हैं हाइड्राइड्स के ऑफ ग्रुप 16. नेक्स्ट इज ऑक्साइड्स. Oxides, all element except selenium forms excuse me, form monooxides. All of them form dioxides. मतलब सेलेनियम जो है वो एक मोनोऑक्साइड बनाता है, बाकी के सारे जो हैं वो डाइऑक्साइड्स बनाते हैं. जैसे SO2 is a gas, SeO2 is a volatile liquid, solid, while tellurium dioxide, polonium dioxide are non-volatile crystalline solids. Sulfur, selenium, tellurium can form trioxides. SO3 is a solid in the solid state, exists in the cyclic trimer or as a linear chain cross-linked into sheets. SeO3 is a solid in a cyclic tetramer, while TeO3 is a solid with network structure. तो इसमें कुछ खास नहीं बता रहे हैं. तो what main thing you have learned here is सेलेनियम को छोड़ के बाकी सारे मोनोऑक्साइड्स बनाते हैं और डाइऑक्साइड सारे ही बनाते हैं. एवरीवन कैन मेक डाइऑक्साइड्स. अब ये बताया जा रहा है जैसे आप अब ऑक्सीजन का ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्कशन नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन ही खुद ही ऑक्सीजन है, तो हम उसके ऑक्साइड की क्या बात करें. बट उसके नीचे के एलिमेंट जैसे SO2, SeO2 ये सारे के स्टेट्स की बात करी कि जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे तो गैस, फिर वोलाटाइल सॉलिड, देन नॉन वोलाटाइल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मतलब स्टेट आपकी डेंसर होती जाएगी. और फिर इनका एग्जिस्टेंस बताया सॉलिड स्टेट में ये साइक्लिक फॉर्म में किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं. नॉट ऑफ मच इम्पॉर्टेंस, बट
दिस पार्ट इज इम्पॉर्टेंट, ये यहाँ से यहाँ तक. Then halides, they form dihalides, tetrahalides, hexahalides, etc. Because you know they can show +2, +4 and +6 valency, and the stability of hydride decreases in the order. ये order आप ध्यान रखो कि सबसे ज़्यादा जो आपका स्टेबल हैलाइड होता है वो फ्लोराइड वाला होता है, देन क्लोराइड, देन ब्रोमाइड एंड देन आयोडाइड. द कंपाउंड विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन. वैसे देखो, आप ऑक्सीजन किसी के साथ भी जोड़ोगे तो उसे ऑक्साइड बोलते हो, ठीक है, लेकिन अगर फ्लोरीन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा तो वो फ्लोराइड कहलाएगा, ऑक्साइड नहीं कहलाएगा. क्योंकि किसी भी कंपाउंड में जो आइड वर्ड लगता है वो एनायन के साथ लगता है, बट जब हम OF2 बनाते हैं, मतलब ऑक्सीजन व्हेन कंबाइंस विद फ्लोरीन, then anion is fluoride ion while oxygen gets a positive charge. Just now I have explained you, right? Because of the greater electronegativity of fluorine. That is why the compound of oxygen and fluorine को fluoride कहा जाता है, ऑक्साइड नहीं कहा जाता. जैसे OF2 is called oxygen difluoride. SF6 is a non-ionic gas. It is inert due to the presence of sterically protected sulfur atom. अब SF6 में क्या है, ये स्ट्रक्चर है इसका, ये देखो, this is the structure of SF6, right? Now in this structure what is happening, sulfur is covered from all the directions by the fluorine atoms. तो इस समय सल्फर क्या है, स्टेरिकली हिंडर्ड है, मतलब इसको चारों तरफ से कवर किया गया है, सल्फर पे कोई अटैक नहीं कर सकता, सो इट इज़ अ प्रोटेक्टेड सल्फर एटम, राइट? सो ये वाली लाइन का मतलब यही है. SeF6 and SF4 are readily, they can readily undergo hydrolysis. SF4 is a gas, is gaseous. SeF4 is liquid. TeF4 is solid. And the halides of Se and tellurium have polymeric structures in +4 oxidation state. तो यहाँ पर क्या चीज़ खास आपको बता रही है? फर्स्ट थिंग इज़ द ऑर्डर. ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा हैलाइड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है. सेकेंड थिंग आपसे पूछ सकते हैं SF6 वाई इट इज़ इनर्ट इन नेचर, तो आपको बताना है कि इट इज़ स्टेरिकली प्रोटेक्टेड. एंड नेक्स्ट इज़ द स्टेट्स, तो ये आप बताएंगे कि जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, सल्फर से सेलेनियम फिर टेलेरियम, इनके जो टेट्राफ्लोराइड्स हैं इसकी स्टेट जो है डेंसर होती जा रही है. So I hope this much is clear to everyone. So this is all about your general properties of oxygen family, the general chemical and the general physical properties. Next onwards, we will be discussing about ozone. This is the most important compound of oxygen family, and sulfur dioxide. H2SO4 is not in this syllabus. It's been deleted now. So H2SO4 नहीं करना है. And finally we have some important questions of oxygen family, right? So this much is enough for today's class. Okay children, thank you.